Assalamu alaikum students, myself Dr. Shahab sir welcome you in the fourth part of chemistry lecture on the periodic classification of elements. We have seen various aspects of periodic classifications, earlier attempts of classification. We have seen how the elements are classified earlier, and what is the modern periodic law, what is the uh, structure of modern periodic table or long form of periodic table. We have seen various aspects of it, and also we have seen uh, various groups and their electronic configuration. Like the group 1 is called as family of alkali metal, and different groups are groups. For example, group 2 is called as family of alkaline earth metals. Group 17 is called as halogen family, or like this we have seen in earlier period. And we have seen the main difference that up till uh, element number 92 that are present in the world, they are not man-made, and from 93 and onwards up to 118 they are highly unstable and they are man-made. Now we will move forward and we will see a different topic today, that is periods and electronic configuration. Just we will take periods and electronic configuration today, and what are the periods and what are the specific electronic configuration. So we will go into that. So basically you have seen that this is a modern periodic table, and these are the periods, these are the periods, these are the periods, and these are the periods, these are the periods. We will see periods and their electronic configuration. Means what? We are dealing with the only these periods, not groups. Okay, we are not dealing with the groups. So what we are dealing with the configuration of these periods and their electronic configuration. So in our textbook there is one periods and their electronic configuration is given. And can you tell, these are the few questions over here. On going through the modern periodic table, it is seen that the elements like lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, neon belongs to the period 2. So if we see, this is the period 2: lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. These all are the elements that are present in the period 2. Write down the electronic configuration. So we have to write down their electronic configuration. Over here their electronic configuration is given. So for example, we are taking the electronic configuration of oxygen. So atomic number of oxygen is 8, then its electronic configuration is 2 and 6. Likewise we have to write for lithium, its atomic number is 3. So what is its electronic configuration? 2 in 2 and 1. Like that we are writing the electronic configuration of all these things. Okay, all these lithium, barium, boron, so on, so on, so on. So if you observe carefully the configuration of lithium, now we configuration of lithium, configuration of barium and all these things, then you will see the next question come over here is that यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल एलिमेंट्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिथियम है, ये इसका पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अगले वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है. तो जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ज़रा देखो इसका लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन
इसके लास्ट वाले इसके अंदर लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ओके। इसके बेरियम के अंदर 2 है, बोरॉन के अंदर 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, लाइकवाइज फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल दिस एलिमेंट? नो, ओके। इज़ द नंबर ऑफ शेल इज सेम इन प्रेजेंट? शेल मतलब उनके जो ये ऑर्बिट है, ये एक शेल, ये एक शेल, तो यहाँ पर 1 और 2, यस, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर भी 1 एंड 2, यहाँ पे भी 1 एंड 2। तो पता चला कि ये सारे पीरियड के अंदर, पीरियड 2 के अंदर 2 शेल्स होते हैं। कितने शेल्स होते हैं? 2 शेल्स होते हैं। ज़रा हम थोड़ा सा, तो इज़ द नंबर ऑफ शेल इज़ प्रेजेंट सेम इन दिस? यस, नंबर ऑफ शेल्स हर एक के अंदर 2 शेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 शेल है, ये सब के पास 2 शेल्स है। थोड़ा सा हम पीरियड 1 की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 शेल है, यहाँ पे भी 1 शेल है। थोड़ा सा और हम नीचे के पीरियड वाले पर देखते हैं, पीरियड 3 के ऊपर, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट इट ओवर हियर। देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 1 8 यानी 3 शेल हो गए। यहाँ पर अभी 2 8 3, यहाँ पे भी 3 शेल हो गए, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सब में 3 शेल्स प्रेजेंट है। सेम अगर हम थोड़ा सा इधर देखते हैं फोर्थ पीरियड के अंदर, तो फोर्थ पीरियड में 4 शेल है, 1 2 3 3 एंड 4, ठीक है। 4 शेल्स आर प्रेजेंट। तो मतलब ये है कि जितने पीरियड है उतने शेल्स है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड है तो उसके अंदर क्या हुआ, 1 शेल है, सेकंड पीरियड के अंदर 2 शेल है, थर्ड पीरियड के अंदर 3 शेल है, फोर्थ पीरियड के अंदर 4 शेल है। बट एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने की है, क्या एक पीरियड के अंदर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं क्या बढ़ रहे हैं? तो हमने ऑब्ज़र्व करा कि हर बार जब हम एक जगह से दूसरी जगह उसके एडजेसेंट जाते हैं तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। मतलब अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 1 इलेक्ट्रॉन एडेड एट एवरी टाइम। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता जाता है। देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 से 6 हुआ, 6 से 7, बट नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट, they are constant, only 2 shells are present along the period। तो यहाँ पे हमने देखे, you will find that number of valence electron is different in these elements, however the number of shells are the same and you will also find from left to right within the period the atomic number is also increasing। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जा रहा है। इसका 3 था तो इसका 4 हो गया, तो इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया एटॉमिक नंबर, इसका 7, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, ठीक है। इससे एटॉमिक नंबर 1 बाय इंक्रीजेज बाय द 1। एट द सेम टाइम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 एट अ टाइम इंक्रीज़ हो रहे हैं, बस यही है। तो इसमें भी अगर हम थर्ड पीरियड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें तो देखो 3 शेल्स है, 1 एट अ टाइम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है, ठीक है। From this we can say that the elements have same number of shells occupied by the electrons belong to the same period। मतलब कि जो एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं उसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं समझाता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक एलिमेंट है जिसका समझो एग्जांपल के वास्ते ए एलिमेंट है, उसका ये फर्स्ट शेल है, दूसरा एलिमेंट उसका ये सेकंड शेल है, दूसरा एलिमेंट है बी, उसका ये फर्स्ट शेल है, उसका ये सेकंड शेल है। अब इसके पास फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक ही पीरियड के हैं क्योंकि दोनों के पास ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स है। क्यों, दोनों के पास एक एक 2 शेल है, इसके पास भी एक शेल है, इसके पास भी एक शेल है। 2 शेल्स की वजह से पीरियड 2 के एलिमेंट्स हो गए, बट उनके पास
फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, सेकंड शेल के अंदर खाली डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इनका दोनों का फर्स्ट शेल एक जैसा है, दैट इज़ सिमिलर टू ईच अदर, यही वहाँ का बोला हुआ है। ठीक है, मीन्स व्हाट, सेम शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होते हैं सेम पीरियड के अंदर। द एलिमेंट ऑक्युपाइड नेमली इन द पीरियड बी, जैसा कि ये पीरियड सेकंड पीरियड, दिस लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन हैव 2 शेल्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, ठीक है, लिथियम का फर्स्ट शेल का उन्होंने नाम रखे के, सेकंड शेल का नाम है एल और थर्ड शेल का नाम है एम, और अगर बाय चांस फोर्थ भी शेल होता होगा तो उसका नाम है एन, के एल एम एन, के फर्स्ट शेल, एल सेकंड शेल, एम थर्ड शेल और एन फोर्थ शेल। तो अब लिथियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 3, तो के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास तो ये शेल है ही नहीं। ठीक है, सो सेकंड पीरियड के पास दो ही शेल रहते, तो कौन से शेल रहेंगे, के एंड एल। थर्ड पीरियड के पास 3 शेल रहते, तो कौन से रहेंगे, के एल एम रहेंगे। फोर्थ पीरियड के पास 4 शेल रहते, मतलब के वाला शेल भी रहेगा, एल वाला भी रहेगा, एम वाला भी रहेगा और एन वाला भी रहेगा। ठीक है, यही बताया गया है यहाँ पर। अच्छा, हर शेल के चलो ये वाला देखो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द, so in modern periodic table, see this is, in modern periodic table, electrons are filled in the same shell while going along the period from left to right, and at the beginning of the next period new shells start filling up. See the table 2.8 वाली टेबल में देखो। नाउ सी, यहाँ से लेके यहाँ तक के ओनली 2 शेल्स आर प्रेजेंट। न्यू इलेक्ट्रॉन जो एडअप हो रहे, लिथियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो वो हो गया बेरियम में एक ऐड हो गया तो ये 3। तो न्यू इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे वो सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे, मतलब सेकंड शेल के अंदर, सेकंड पीरियड में सेकंड शेल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो सेकंड शेल में, यहाँ पर एक थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में ही हुआ, ये भी सेकंड शेल में ही हुआ, फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ऐड हुआ तो वो भी किसके अंदर हुआ, सेकंड शेल के अंदर। सब सेकंड पीरियड में सारे के सारे सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे। वैसे ही जब अगर हम ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जा रहे तो न्यू इलेक्ट्रॉन्स जो एडअप होते जा रहे वो सेम शेल में हो रहे ऐड, सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे। और अगर हम नीचे जा रहे ऊपर से नीचे तो न्यू शेल्स बनते जा रहे। देखो यहाँ पे 2 8 है तो यहाँ पर एक न्यू शेल ऐड हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर 2 8 8 है, यहाँ पे एक शेल है, मतलब अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे तो न्यू शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, न्यू शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे। कौन ऐड हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स, अगर टॉप टू बॉटम जा रहे। और अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, ऐसा यहाँ से ये पीरियड में जा रहे हैं तो सेम शेल में, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो न्यू शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलो ज़रा ये देखते हैं हम कि
number of elements in the first three period is determined by the capacity of the shell and rule of octet। ज़रा इसको कंसंट्रेट करो। एक एलिमेंट है ए जिसका है ये फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल और ये है थर्ड शेल। ठीक है, आपकी मालूमात कैसे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है के, इसका नाम है एल और इसका नाम है एम। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड में के वाले रहेंगे, सेकंड पीरियड में के और एल वाले एलिमेंट रहेंगे और थर्ड पीरियड में एम वाले रहेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए कि कभी भी फर्स्ट पीरियड के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, और थर्ड के अंदर टोटल रहना चाहिए 18। ठीक है, मगर 8 भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो काम चल जाएगा। इसको जो बोलते हैं रूल ऑफ ऑक्टेट, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। मतलब फर्स्ट की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर फर्स्ट कोई है हाइड्रोजन के पास फर्स्ट इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 की कैपेसिटी है, तो उन्हें किसी से एक बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके फिर हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकते हैं। ठीक है, सेम वे ये जो सेकंड शेल है जिसको हम एल कहते हैं, एल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की और एम की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की, जिसके पास एक सिंपल फार्मूला है, दैट इज़ फार्मूला 2n²। क्या फार्मूला है? फार्मूला है 2n², वेयर द n इज़ नंबर ऑफ शेल। कौन से नंबर का शेल है हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि जो है तो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। ज़रा देखो इधर। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का, 2n²। तो फर्स्ट ये 2 मल्टीप्लाइड बाय, हम फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी निकाल रहे थे, यहाँ पे n इज़ नंबर ऑफ शेल, इसका स्क्वायर फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। समझ में आया? सेम हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 का 2 हम सेकंड शेल की एग्जांपल लेते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 2 तो 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया देखो ज़रा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 8। तो सेकंड शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको जो बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट। सेम वे यहाँ पर फाइंड आउट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, एम वाले शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 18 है, एन वाले इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी फोर्थ शेल की है 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट इज़ ओनली 2। मतलब कि पहला जो पीरियड है हमारा फर्स्ट पीरियड, ठीक है, पीरियड 1, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। क्यों 2 एलिमेंट्स है? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पीरियड के अंदर एक ही पीरियड है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसके अंदर जो एलिमेंट है उनके पास एक ही शेल है। ये फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है? 2। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एलिमेंट आ गया। दूसरा है हीलियम, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया। अब तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो थर्ड शेल में जाएगा, ना कि ये फर्स्ट शेल में एकोमोडेट होगा। तो पता चला फर्स्ट पीरियड की अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेम वे थर्ड पीरियड जो है सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, सेकंड पीरियड के अंदर है लिथियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 बढ़ते कहाँ तक जा सकता? 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। मतलब यह हुआ कि सेकंड के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड पीरियड के अंदर सेम वे अप टू 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यही यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और इसके बाद के पीरियड के अंदर हम देखेंगे
कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हम वैलेंसी देखेंगे। जो अगर लाइव सेशन अगर होता है तो मैं उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ द वैलेंसी इज़, व्हाट इज़ द वैलेंसी एंड व्हाट इज़ द चेंजेस ऑफ वैलेंसी अकर इन द पीरियड अलोंग द ग्रुप एंड फ्रॉम अबाउट ग्रुप के अंदर कैसा वो वैलेंसी चेंज होती है, पीरियड के अंदर कैसा एलिमेंट्स की वैलेंसी चेंज होती है। ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे इंशाअल्लाह।